I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. For our meditation this morning, I have chosen from the first book of Chronicles, chapter 22, verse 11. Now, my son, the Lord be with you, so that you may succeed in building the house of the Lord your God, as he has spoken concerning you. Good morning, friends. It is the duty and responsibility of every parent to help their children understand that they will be successful when God is with them. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is success when God with us. Here we understand David prepares everything for the building of the temple, but God did not want David to build the temple because there was blood on his hands because of the war that he had waged. But God, however, promised David that his son Solomon would build the temple. David, while speaking to Solomon, helps him understand that is a responsibility entrusted by God to Solomon to build the temple. And then David emphasizes the fact that Solomon would be successful in building the house of the Lord because the Lord was with him and the Lord will be with him. Friends, this is what we need to help our children understand. There are responsibility which is given unto the people of God, but then it is not the ability or the strength or the power or authority they themselves have, but it is God being with them which will make them successful. And no matter how intelligent or how powerful they are, or how all the things were put together for them, even then, each one of us has to realize if God is not with us, we will not be successful. And when God is with us, in spite of all odds, in spite of all challenges, each of us will be successful. And this is what has to be taught to our children. When God is with us, we will certainly be successful. For the Lord will help us walk through every challenge and come out victorious. Gracious God, our Heavenly Father, we praise you, we thank you, we honor you. Help us, Lord, to trust in you, and help us to help our children trust in you and be successful. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 22 और उसका 11वां वाक्य। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। आपका दिन आशीषित हो। ये हर माता पिता का उत्तरदायित्व है और कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को यह सिखाएं कि वे अवश्य सफल होंगे जब परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सफलता जब परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। यह हम जानते हैं कि दाऊद ने मंदिर के निर्माण के लिए सारी सामग्री इकट्ठा कर ली थी, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद मंदिर का निर्माण करे, क्योंकि उसके हाथ लहू से सने हुए थे, क्योंकि उसने बहुत से युद्ध लड़े थे। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से ये वादा किया था कि वे उसके पुत्र सुलेमान को अनुमति देगा कि वह उसके मंदिर का निर्माण करे। जब दाऊद सुलेमान से बात करता है तो वह उसे समझाता है कि यह उत्तरदायित्व उसे परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि वो परमेश्वर के भवन का निर्माण करे। और फिर दाऊद संपूर्ण विश्वास के साथ बताता है कि सुलेमान इस भवन को बनाने में
सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर उसके साथ बना रहेगा। मित्रों, हम अपने बच्चों की सहायता करें ताकि वह इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर के लोगों को कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं, लेकिन यह इनकी सामर्थ्य नहीं, इनकी प्रभुता नहीं जो उनके पास है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनके साथ बना रहता है, उसी की वजह से वे सफल बनते हैं। बच्चे कितने ही बुद्धिमान हों, कितने ही शक्तिशाली हों और किस प्रकार से सब कुछ उनके लिए बनाया गया है, तब भी प्रत्येक को ये समझना चाहिए, यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है और चीजें कितनी ही हमारे विरोध में हो, परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। चुनौतियां जितनी भी आए, हम में से प्रत्येक सफल होंगे और यही शिक्षा हम अपने बच्चों को दें। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर हर चुनौती में से हमें बाहर निकालता है और हम सफल होते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तुझे आदर देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर भरोसा करें, और हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम अपने बच्चों की सहायता करें कि वे तुझ पर भरोसा करें और सफल बने रहें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।